that is pin description of Intel 8086. Now, before discussion of pin, yes, Prashant Raj, Prashant Kumar. सर फ्लैग रजिस्टर कंप्लीट नहीं हुआ था सर. अच्छा, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर ना. यस सर. Which section is incompleted? Some of the control flag register na. Priority flag. Yes. Priority flag register we already discussed in when we discussed the CPU registers. Okay na? And we discussed about the direction flag, trap flag, and the the third one is the interrupt flag. ठीक है ना? तो उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है, बट ओनली पॉइंट्स यू हैव टू नोट इट डाउन कि व्हाट इज कंट्रोल फ्लैग्स एंड व्हाट आर द वेरियस कंट्रोल फ्लैग्स वी हैव फॉर इंटेल 8086. वी ऑलरेडी मेंशन ऑल द कंट्रोल फ्लैग्स लाइक डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग. ठीक है ना? एंड आल्सो द कांसेप्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फ्लैग. So I just share that particular contents. ठीक है ना? But today we'll discuss about the pin description of Intel 8086. Before discussion of this, first of all, we just discuss that why we discuss the pin description. Pin description discuss करने के पहले we discuss what are the various operating mode. So in 8086, है ना? Basically in 8086 there are two operating mode. ठीक है ना? Two operating mode. And in 8086, two operating mode we have. That is, first one is the minimum operating mode, and second one is the maximum operating mode. यानी आपका जो Intel 8086 है वो दो मोड में ऑपरेट होता है. Intel 8086 microprocessor operate in two different mode, that is minimum operating mode and maximum operating mode. Anyone have any idea about what is the difference between minimum and maximum operating mode? Minimum operating mode and maximum operating mode. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बिकॉज जब हम लोग पिन डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे तो देयर इज सम स्पेसिफिक पिन which acts differently in these two cases. Rest of the pin is common to both. कुछ पिन है जिस पिन का जो है मीनिंग मिनिमम और मैक्सिमम के लिए चेंज होता है, बट द सेम पिन इज यूज्ड इन ए मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. ठीक है ना? लेकिन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पिन चेंज इन केस ऑफ मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस यू थिंक? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड? एनीवन? स्टोरेज एरिया सर. मैक्सिमम अगर आप सिंपल इसको समझिए तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका जो भी सिग्नल्स है, कंट्रोल सिग्नल्स, ये ऑल कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द मेमोरी एज वेल एज इनपुट आउटपुट आर जनरेटेड बाय द सीपीयू, दैट इज 8086 इटसेल्फ. यानी इन मिनिमम ऑपरेटिंग मोड ऑल द कंट्रोल सिग्नल्स, चाहे वो मेमोरी के लिए हो या इनपुट आउटपुट के लिए हो, वो आपका प्रोसेसर ही जनरेट करता है. यानी 8086 इज द प्रोसेसर. So 8086 is responsible for generation of any types of control signals. Now in case of maximum operating mode, some control signals are generated externally. ठीक है ना? तो because some of the control signals are generated externally, so there is a need of additional external bus. So additional external bus is needed to control the particular processing job. So in Intel 8086 we have 8288. यानी 8288 is the name of controller. ठीक है ना? Bus controller you can say. It is the name of bus controller which is responsible for generating control signals externally, that is external to the computer.
ठीक है ना। तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड यू कैन मेंशन हियर कि इन मिनिमम ऑपरेटिंग मोड, in minimum operating mode, all control signals for memory or input output is generated by 8086 यानी माइक्रो प्रोसेसर। तो इन मिनिमम ऑपरेटिंग मोड all control signals for memory or input output is generated by 8086, whereas in maximum operating mode some of the control signals, some of is mentioned here. ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में सब कुछ एक्सटर्नल ही होता है, यानी कि सीपीयू भी रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ साथ सम ऑफ द कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कुछ कंट्रोल सिग्नल्स, some of the control signals are generated externally. Some of the control signals are generated externally, and this is required, yani this requires the addition of an external bus controller, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं for 8086 bus controller is used to accomplish this task, ठीक है ना। तो 8288 जो है, this is the name of bus controller 8288. This is the name of bus controller which is responsible for generating control signals, ठीक है ना, along with the control signal generated by the CPU. So basically why we discuss this, when we discuss the pin description of Intel 8086, then we have two operating mode, यानी 8086 जो है दो तरह से ऑपरेट होता है, एक है मिनिमम, दूसरा है मैक्सिमम। मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो सब, चाहे वो मेमोरी के लिए हो, चाहे वो किसी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट डिवाइस के लिए हो, वो 8086 यानी माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। लेकिन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में some of controls signals are generated externally, and because the control signals are generated externally, this requires the addition of external bus controller. So there is additional bus controller added with 8086 in the form of 8288. 8288 is the bus controller which is used to accomplish this types of tasks, that is, it is used for giving support in case of maximum operating mode of 8086. इसका मतलब है कि आपका कुछ पिन 8086 का कुछ पिन जो होगा वो सेम फंक्शन करेगा, और कुछ पिन जो होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करेगा। तो व्हेन वी डिस्कस द पिन्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी पिन्स वी हैव इन Intel 8086? एनीवन? When we discuss the evolution of microprocessor, at that moment we discussed the number of pin, number of registers used in Intel 8086. So how many pins are there? Anyone? 40 pin. 40. Yes. 40 pins are there. So we just discussed that one. Now the pin description of 8086. So this is the pin diagram. Okay, this one is the pin diagram of 8086. Now see the pin diagram. ये जो आपका diagram है 8086 pin diagram. First of all, in left side we just take the number 1 to 20 number is there. In right side we have
21 to 40, and total 40 pins are there. Now see, after allocating the numeric value for each pin, just think about and you just see the particular direction of the pin. तो आप देखेंगे कि कुछ पिन यहाँ बाई डायरेक्शनल दिख रहा है और कुछ पिन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब यूनिडायरेक्शनल के केस में आइदर आउटसाइड ऑफ द सीपीयू और इनसाइड ऑफ द सीपीयू, यानी इनवर्ड या आउटवर्ड। तो आपको इसमें यहाँ पर 3 तरह का पिन मिलेगा। सबसे पहला पिन किस तरह का पिन है, ये आपका एक बाई डायरेक्शनल पिन मिलेगा इसमें, जिसका मतलब हम लोग समझेंगे अभी। किस तरह का पिन मिलेगा, बाई डायरेक्शनल पिन। दूसरा इनवर्ड पिन, और तीसरा आउटवर्ड पिन। ये 3 तरह का पिन है डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाई डायरेक्शनल पिन आपका क्या है, बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि यहाँ पर डेटा का कॉन्सेप्ट है, डेटा बस। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिस्टम बस, तो सिस्टम बसेस आपका कितना तरह का होता है, एनीवन? 3 तरह का होता है सर। हाँ, कौन कौन? डेटा बस, स्टोरेज बस सर। स्टोरेज नहीं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, यस सर, यस सर। स्टोरेज नहीं, सॉरी। हम लोग पढ़े थे डेटा, कंट्रोल और एड्रेस। तो इसमें डेटा बस आपका क्या होता था, ये बाई डायरेक्शनल होता था। यस सर। और कंट्रोल और ये एड्रेस, ये यूनी डायरेक्शनल होता था। यस सर। नाउ जहां पर भी आप डबल यानी बाई डायरेक्शनल पिन देख रहे हैं, यानी कि देखिए जस्ट पिन नंबर 2 से लेकर यहाँ पिन नंबर 17 तक, और इधर आपका पिन नंबर 39 ओनली बाई डायरेक्शनल पिन है। ये बाई डायरेक्शनल किस? 31 सर। हाँ 30। हाँ बोलिए। 31, 30। हाँ होल्ड सर। ठीक है, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 16 पिन को पहले डिस्कस कर रहे हैं। हाँ उसको डिस्कस करेंगे। 30, 31 भी है आपका बाई डायरेक्शनल है, वो क्यों है वो बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में के कॉन्सेप्ट में ये 30 और 31 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 33 के बेसिस पर। एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट ये हम लोग समझे कि इसमें टोटल 40 पिन्स है। फर्स्ट पॉइंट, जिसको नंबरिंग किया गया लेफ्ट साइड में 1 to 20, राइट साइड में बॉटम अप किया गया है 21 से 40 पिन का नंबर। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कि इसमें जो पिन है, वीडियो ऑन रखिए, सारे लोग वीडियो ऑन रखिए। इसमें जो पिन है उसका डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं। तो अभी हम बताए कि पिन नंबर 2 से लेकर 17 और इधर आपका 39, तो 17 नहीं, अभी हम लोग 16 तक देखेंगे। पिन नंबर 2 से 16, 17, 30, 31 सबको बाद में डिस्कस करेंगे। तो 2 से 16 कितना पिन हुआ टोटल? 15 सर। 15 पिन हुआ, 15, और एक आपका 39 हुआ, यानी 16 पिन्स। अब ये बताइए कि इंटेल 8086 में कितना डेटा बस है, कितना बिट का डेटा बस है? डेटा बस के लिए कितना बिट है? 16 यानी डेटा बिट आपका 16 है ना सर। हाँ बोलिए। और एड्रेस? Also 16. Also 16. No. Address is of 20 bit. ठीक है ना? डेटा आपका 16 बिट है, एड्रेस 20 बिट है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. पिन नंबर 2 से लेकर 16 तक, यानी टोटल 15 पिन हुआ, और एक 39, 16 पिन हुआ। ये 16 पिन आपका बाई डायरेक्शनल है। क्यों है? ड्यू टू डेटा बस। ठीक है ना? तो डेटा आपका जो है वो 16 बिट है, 16 बिट डेटा बस है, और 20 बिट एड्रेस बस है। तो 16 बिट यहाँ जो 2 से 16 और 39, ये जो 16 पिन है,
ये बाई डायरेक्शनल है ड्यू टू डेटा बस, क्योंकि इस पिन को नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया है AD02, जस्ट मेंशन हियर, ये पिन नंबर 22, पिन नंबर 16, पिन नंबर 16 और पिन नंबर 39, ये जो पिन है, यानी टोटल कितना पिन हो गया इसमें? 16। हाँ, टोटल 16 पिन्स हुआ इसमें। ये जो 16 पिन्स है, ये 16 पिन्स बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल किसके लिए है? डेटा बस के लिए बाई डायरेक्शनल पिन है। दीज आर द बाई डायरेक्शनल पिन। अभी हम लोग बताए इसमें कितना तरह का पिन दिखेगा, एक तो बाई डायरेक्शनल पिन, दूसरा इनवर्ट पिन। इनवर्ट का मतलब हुआ जो सीपीयू के तरफ हो, यानी सीपीयू के अंदर जो इन कर रहा हो पिन का डायरेक्शन। आउटवर्ड जो सीपीयू से बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड पिन। तो ये बाई डायरेक्शनल पिन सबसे पहला कैटेगरी कितना पिन है? तो टोटल 16 पिन हम लोग का जो है वो अभी जो डेटा बस के चलते बाई डायरेक्शनल है, तो बाई डायरेक्शनल पिन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो पिन का नेमिंग कन्वेंशन है AD0 से AD14 और यहाँ पर AD15 किया गया है। तो यहाँ पर AD0 से AD15 आप बोल सकते हैं। ये AD0 से AD14 आपका 2 से 16 है, यानी दो नंबर, पिन नंबर 2 से 16 के बीच में जो आपका AD0 to AD14 है, और पिन नंबर 39 AD15 है। ये एक्चुअली क्या है, ये जो पिन है ये A0 to A15 और D0 to D15 में बटा है। यानी A0 to A15 ये आपका हो गया एड्रेस बस, एड्रेस, और ये हो गया आपका डेटा। यानी डेटा के लिए, यानी डेटा बस को यूज करते हुए अगर कोई डेटा को मूव कराना है तो डेटा को सीपीयू के अंदर भी आप भेजते हैं, यानी डेटा इन भी होता है, डेटा आउट भी होता है। तो डेटा इन और आउट डेटा बस के थ्रू होता है। तो ये बाई डायरेक्शनल पिन इस डेटा बस के चलते हैं। एड्रेस बस तो आपका यूनिडायरेक्शनल है, वो यूनिडायरेक्शनल ही काम करेगा। तो ये जो AD0 to AD15 है, इसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे है, इसको साथ में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, AD0 to AD15 is divided into two section, A0 to A15 for address, D0 to D15 for data. Is it clear? Yes sir. हाँ, तो ये आपका टोटल 16 पिन। तो डेटा आपका कितना बिट है? 16 बिट डेटा है। तो अब ये आपका इस पिन को लेने से आपका ये डेटा बस कंप्लीट हो गया, यानी कि डेटा जो 16 बिट का था वो हो गया AD0 to AD15, that means total D0 to D15, total 16 bit is utilized, क्योंकि हर पिन आपका एक बिट का डेटा जो है रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन आपका एड्रेस बस, यस बिट्टू राज बोलिए। सर एक बात समझ में नहीं है, 16 पिन है सर, तो एड्रेस 20 कैसे होगा? एड्रेस 20 कैसे होगा? जी सर, एड्रेस अभी तो 16 ही हुआ है, 20 कहाँ हुआ है? एड्रेस बस सर। हाँ, एड्रेस बस तो अभी 16 ही यूज हुआ है ना। अब यहाँ देखिए, यस सर। अभी हम लोग केवल डेटा बस कंप्लीट कर लिए, एड्रेस अभी भी 4 बाकी है। 16 बिट ही यूज हुआ एड्रेस का, 4 बिट बाकी है ना। यस सर। हाँ, तो ये जो 16 पिन हम लोग डिस्कस किए, इसमें दिस पिन इज मल्टीप्लेक्स्ड विथ डेटा एंड एड्रेस। ठीक है ना। ये जो 16 पिन है ये डेटा बस और एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब हुआ कि सेम पिन इज यूज्ड फॉर डेटा एंड एड्रेस बस। नाउ you have already 16 bit of data bus and 20 bit of address bus. So 16 bit of data and 16 bit of address is multiplexed with this 16 pins. 16 पिन में ये एड्रेस बस तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन डेटा बस कंप्लीट हो गया। तो इस 16 पिन के माध्यम से आपका डेटा बस और एड्रेस बस ये दोनों यूज हो रहा है, दोनों सेम पिन को यूज कर रहा है। लेकिन कब एड्रेस बस यूज होगा, कब डेटा बस, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। There is one pin, address latch enable, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी।
जब ये एक्टिव हाई होता है, जब ALE हाई रहता है तो ये एड्रेस बस का काम करता है, जब ये लो होता है तो ये डेटा बस का काम करता है। तो ALE ऑन होने पर आपका एड्रेस, ये सारे पिन यानी 16 जो पिन है ये एड्रेस को केवल लोकेट करते हैं, एड्रेस मूव कराते हैं। और जैसे ही ALE ऑफ होता है, एड्रेस लैच इनेबल ऑफ होता है, तो डेटा बस आपका इनिशिएट करता है, डेटा बस रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो अब इसमें से 4 जो आपका डेटा बस बच गया, वो 4 डेटा बस आपका जो है वो यहाँ देखिए, यानी 35, 36, 37, 38, ये जो 4 पिन है इसमें यहाँ मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ पर केवल A है, नॉट D को यहाँ आप नहीं ट्रीट करिएगा, यहाँ से ये D नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज आई जस्ट यूज द फिगर। तो यहाँ यू जस्ट रीड इट, A16, A17, A18, A19. D is not mentioned here, ठीक है ना, because I just collect this figure from the net, that's why this figure is not correct one, just rectify this one. तो यहाँ पर जो 35 से लेकर 38 तक का जो पिन है, इसमें इसको हम लोग नेमिंग कन्वेंशन यूज के A16, A17, A18, A19. Now your 20 address bus is completed. Yes sir. ठीक है ना, तो 16 जो एड्रेस बस है वो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स है, और जो बाकी का 4 है वो स्टेटस सिग्नल्स के साथ मल्टीप्लेक्स है। तो S3, S4, S5, S6 these are the status signals. तो A16, A17, A18, A19 these 4 address bus is multiplexed with status signals. तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। First we will discuss the 16 pins in which all the data bus is completed and 16 address bus is also completed. 4 is left, so that 4 is allocated here by the pin number 35, 36, 37 and 38. Is it clear? Yes sir. हाँ, तो ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका AD02, AD15 ये जो आपका पिन है जिसमें 16 एड्रेस बस यूज हुआ और 16 डेटा बस। चूंकि आपका इंटेल 8086 में 16 डेटा बस है, 16 बिट है, और एड्रेस बस 20 बिट है, तो 16 बिट डेटा बस तो ये यूज कर लिए इस पिन से। 4 एड्रेस बस जो बच गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटस सिग्नल से मल्टीप्लेक्स करके। तो ये पिन आपका क्या ऐड करता है, दीज पिन्स, फर्स्ट नोट इट डाउन दिस वन, these pins act as the multiplexed address and data bus of the microprocessor. Of the microprocessor. अभी हम लोग डिस्कस किए थे ALE, whenever ALE, that is address latch enable, so whenever ALE, address latch enable, pin is high, that is 1, high, that is 1, these pins carry the address, and when the ALE pin is low, that is 0, these pins carry data. ठीक है ना, इज इट क्लियर? यानी एड्रेस लैच इनेबल आपका जब हाई रहेगा तो ये एड्रेस बस का काम करेगा ये पिन, और जैसे ही लो होगा तो ये पिन आपका डेटा बस का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है A0 से A15, D0 से D15, इसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको पता है। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो है ये पिन एड्रेस और डेटा बस का काम के लिए यूज किया जाएगा। हमेशा पिन से एक बिट का ही इंफॉर्मेशन मूव करेगा।
तो एड्रेस या डेटा बस के लिए आइदर 0 या 1 वैल्यू आप ले सकते हैं। तो एड्रेस और डेटा बस आपका कब काम करेगा, कब एड्रेस बस रिस्पॉन्ड करेगा, कब डेटा बस, ये डिपेंड करेगा ALE एक्टिव हाई है या लो है। अगर एड्रेस लैच इनेबल, वो भी एक पिन है, आगे हम लोग देखेंगे अभी इस डायग्राम में। देयर इज ALE पिन नंबर 25, यू जस्ट सी इन पिन नंबर 25 देयर इज ALE, ठीक है ना। तो एड्रेस लैच इनेबल पिन, तो एड्रेस लैच इनेबल पिन आपका जब ये हाई होगा तो आपका डेटा बस एड्रेस बस काम वर्कआउट करेगा, अगर लो होगा तो डेटा बस वर्कआउट करेगा, ठीक है ना। नाउ यस विशाल कुमार। सर ALE कब हाई होगा कब लो होगा? हाँ ALE कब हाई होगा कब लो होगा? हाँ, ALE हाई होगा जब आपका एड्रेस बस को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। इनिशियली आपका एड्रेस बस इनिशियलाइज होगा और उसके बाद फिर आपका ALE लो होगा। ALE जब लो होगा तो डेटा बस, यानी जब आपको डेटा मूव कराना होगा तो डेटा बस यानी कि एड्रेस को इनेबल करेंगे, एड्रेस लैच इनेबल होगा, और जब आपको एड्रेस को मूव कराना होगा तो डेटा बस आपका डिजेबल होगा। तो ये इनेबल डिजेबल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होते रहेगा इनसाइड द सिस्टम। यस ठीक है ना। एनी अदर क्वेश्चन? डायरेक्शन मेन, आप डायरेक्शन सबका समझना है पहले। तो ए टोटल 20 पिंस यानी कि 40 पिंस में से हमने 16 पिंस को डिस्कस किया अभी, और रेस्ट ऑफ द 4 पिंस यानी कि आउट ऑफ 40 20 पिंस तो एड्रेस और डेटा के लिए ही यूज हो रहा है, जिसमें से 16 पिंस जो है एड्रेस डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है और 4 पिंस एड्रेस विथ स्टेटस मल्टीप्लेक्स्ड है, ठीक है ना। अब ALE आपका हाई होगा, यानी इनिशियली जब भी आप कोई ऑपरेशन होता है सिस्टम में तो सबसे पहले CPU कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, या जो भी एड्रेस आपका CPU लॉजिकल एड्रेस CPU ही जनरेट करता है। तो जब CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा होगा तो उस समय डेटा का जरूरत नहीं होगा। जब लॉजिकल एड्रेस क्रिएट होगा उसके बाद डेटा इन और डेटा आउट का जरूरत होगा। डेटा इन प्रोसेसिंग कराने के लिए और प्रोसेस होने के बाद डेटा आउट प्रोसेसर से बाहर भेजने के लिए डेटा को, ठीक है ना। तो एड्रेस लैच इनेबल आपका एक्टिव हाई होता है जब आपका प्रोसेसिंग स्टॉप होता है, डेटा मूवमेंट की जरूरत होता है, डेटा को इन करने का जरूरत होता है, तो एड्रेस लैच इनेबल आपका लो होता है, एक्टिव लो होता है। यानी कि एक्टिव हाई के बाद जैसे ही लो होगा तो आपका डेटा बस मूवमेंट इनिशिएट हो जाएगा। यानी टोटल 16 पिन हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट जो आपका है पिन नंबर, यानी पिन नंबर कौन कौन सा पिन है? 35, 36, 37, 38। तो पिन नंबर 35 टू पिन नंबर 38, ठीक है ना। ये किस तरह का पिन है? ये आपका यूनिडायरेक्शनल पिन है। इसमें केवल आपका वन डायरेक्शनल यानी कि इनवर्ट पिन है या आउटवर्ड पिन है? आउटवर्ड। आउटवर्ड है। तो ये इसलिए आउटवर्ड है क्योंकि आपका एड्रेस जो है वो CPU जनरेट करता है, तो एड्रेस बस के थ्रू वो भेजेगा, जो भी एड्रेस जनरेट करेगा तो वो CPU से बाहर की तरफ ही जाएगा, जिसके बाद आपका जो है प्राइमरी मेमोरी फेचिंग इनिशिएट करेगा। यानी जो भी एड्रेस जनरेट हुआ है उसके बेसिस पर आपका फेचिंग इनिशिएट करेगा प्राइमरी मेमोरी, और जब फेचिंग ओवर होगा तो कैश मेमोरी में वो डेटा एलोकेट होगा और फिर वहां से डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन फेज में वो मूव करेगा। तो कैश मेमोरी से CPU उसको कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन यानी डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन का पार्ट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर इस पिन में योर A16, S3, A17, S4, A18, S5 एंड A19, S6 ये आपका पिन है
है ना, A16 S3, A17 S4, 18 S5, 19 S6. These pins यानी कि 4 pins, now further 4 pins we have. तो 16 pins हो गया डेटा और एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स्ड, और ये 4 पिन आपका जो बचा हुआ एड्रेस बस है, ये 4 पिन स्टेटस सिग्नल से मल्टीप्लेक्स्ड है. तो यू कैन से दीज पिन्स, और ये किस तरह का पिन है, ये आपका आउटवर्ड पिन है. ये ध्यान रखना है जब आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, तो इनवर्ड आउटवर्ड बाई डायरेक्शनल पिन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना. इनवर्ड हुआ जब सीपीयू के तरफ, यानी कि सीपीयू के तरफ अगर कोई पिन डायरेक्शन है तो इनवर्ड होगा, और सीपीयू से बाहर होगा तो वो आउटवर्ड पिन. तो इट इज आउटवर्ड पिन. तो यू कैन राइट मेंशन हियर दीज पिन्स, that is address slash status bus. These pins are multiplexed to provide the address signals A16 to A19 and the status bits S3 to S6, ठीक है ना, S3 to S6. अगेन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका एड्रेस बस कब काम करेगा बिट्टू राज? जैसे आपका डेटा बस और एड्रेस बस में, एड्रेस बस आपका इनेबल होता था जब एड्रेस लैच इनेबल हाई होता था, और डिसेबल होता था जब. तो यहाँ भी आपका एड्रेस बस कब आपका यूज होगा? when ALE is equal to 1. When a address latch enable is high, then A16, A17, A18, A19 is in a working mode. यानी कि these pins are used as a address bus. Whenever the ALE is high, that is 1, these pins carry what carry? Carry the addresses. Carry the address, and when ALE is equal to 0, that means low, then these pins carry the status lines. Carries the status lines. इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो पिन है 35 to 38, that is total 20 pins we discuss. 16 pins are multiplexed with address and data bus, and 4 pins and 4 address bus is multiplexed with status lines. तो आपका ये टोटल हो गया 20 pins, यानी 20 pins out of 40, 20 pins is used for address bus as well as data bus. So because we have 16-bit address bus, data bus and 20-bit address bus, so 16-bit address and data bus is multiplexed. So once you the data bus and multiplexed with the 16 pins, then your data bus is completed. 16-bit data bus complete हो रहा है, लेकिन एड्रेस बस 4 बिट रह रहा है. तो वो आपका एक बीट का जो है 4 डिफरेंट पिन को यूज करके स्टेटस लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होकर यूज होगा. अगेन जो आपका जो है एड्रेस बस को फॉर्मुलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म हम लोग यूज किए एड्रेस और डेटा बस के लिए, वही मैकेनिज्म यहाँ भी यूज होगा एड्रेस और स्टेटस लाइंस के लिए भी, ठीक है ना. अब यहाँ पर जो S5 और S6 है, तो S5 indicates the condition of interrupt flag bit and S6 remains always logic 0. आपको S4 और S3 के लिए देखना है. तो यहाँ पर there is a conclusion for S4 and S3. ये 2 स्टेटस सिग्नल है, बाकी एड्रेस बस तो जैसे आपका काम करता है. अब ये चूंकि 2 स्टेटस है, तो कौन सा सेगमेंट एक्सेस होगा इसमें? We just see it, this one segment access.
तो S4 और S3 ये दो स्टेटस सिग्नल्स है। तो मैथमेटिकली अगर नंबर जो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम लोग बनाते हैं वो n नंबर ऑफ इनपुट के लिए 2 to the power n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस 2 है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? एनीवन? 2 सर 2 नहीं 4 सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए फॉर n number of input channel, you can say n number of channel, we have 2 to the power n number of combination। ये मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन है, मैथमेटिकली, ठीक है ना। n नंबर ऑफ चैनल के लिए n नंबर ऑफ चैनल बोलिए या n नंबर ऑफ इनपुट चैनल बोलिए, वी हैव 2 to the power n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर 2 इनपुट है ना, तो कितना कॉम्बिनेशन होगा 0 1 का? 4। 4 सर। हाँ, तो 4 का आधा करेंगे, 4 का आधा करेंगे तो 2 होगा। तो फर्स्ट टाइम 2 0 2 1 और फिर 2 का आधा करेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1। अब इसमें सेगमेंट कौन सा एक्सेस होगा? हम लोग डिस्कस किए थे सेगमेंट रजिस्टर। यू जस्ट गो थ्रू, यू हैव एन आइडिया अबाउट द सेगमेंट रजिस्टर। हाउ मेनी सेगमेंट रजिस्टर वी हैव इन Intel 8086? 4 सर। कौन